بے مقامن ظہرہی واضح برتیاد و فرائض والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت السیدہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ الحجت ابن الحسن القائم صلوات اللہ علیہم جمیعا ولعنت اللہ علی اعدائہم جمیعا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ درود بلند آواز سے پڑھیے درود اتنا بلند پڑھیے کہ مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے ملتمس ہوں یہ جگہ کافی خالی پڑی ہوئی ہے دو قدم آگے آ جائیں بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو جائے جو حضرات دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کافی جگہ ہے بسم اللہ یا رسول اللہ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جا سکا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اللہ کے پاک کلام سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 88 تلاوت فرمائی ہے اللہ ارشاد فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء میرا حبیب اپنی امت کو بتا دے کہ ہر شے کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے شیعہ ہوتا وہی ہے جو قرآن پہ بولے حق بھی یہی بنتا ہے ہر شے کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اللہ جسے چاہے پناہ دے جسے چاہے پناہ نہ دے جسے چاہے اللہ پناہ دے جسے چاہے نہ دے یعنی جسے اللہ پناہ دے دے قرآن کا فیصلہ ہے اس کے لیے تو پناہ ہے جسے اللہ پناہ نہ دے اللہ فرما رہا ہے اسے کائنات میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا مجمع حسینیوں کا ہو جملہ حسین کی عظمت کا آپ کی میں نظر کروں اور سر سے گزر گئے یہ ہو نہیں سکتا میرا مالک گستاخی معاف ابھی کل کی بات ہے فطرس کو تو نے پناہ نہ دی میرے حسین نے دے دے جو ہاتھ بلند ہو گئے ان ہاتھوں کو میرا مولا سلامت رکھے توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں کل کی بات ہے تیرے قرآن کا فیصلہ یہ ہے جسے میں پناہ دے دوں اس کے لیے پناہ ہے جسے میری دربار سے پناہ نہ ملے پھر اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا مثلی کے دعوے پہ تو نے فطرس کو پناہ نہ دی پر جلا کے ایک تاریک وادی میں پھینک دیا پھر ہوا کیا میرے حسین نے پناہ دی فطرس کو میرے حسین نے پناہ دی دو باتیں ہیں تیسری ہو نہیں سکتی یا تو قرآن کی آیت کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ نہیں تو مانو کہ اللہ کی نظر میں حسین کی پناہ ہی اصل میں اللہ کی پناہ جسے حسین پناہ دے دے پہلا دن میرے مولا کریم کربلا کا اس دنیا میں آتے ہی امت مصطفیٰ کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا میرے بادشاہ نے 14 صدیاں ہو گئی نجس ملا یہی بکواس کرتا آ رہا ہے کہ محمد نور ہے یا خاک ہے علی نور ہے یا خاک ہے سیدہ نور ہے یا خاک ہے حسن نور ہے یا خاک ہے حسین نور ہے یا خاک ہے حسین بادشاہ نے اس دنیا میں آتے ہی اپنی حکمت کا در کھول کے فطرس کو شفا دے کے زمانے والوں کی زبانیں بند کر کے فرمایا زمانے کے جاہلوں یاد رکھو جس طبیب کی حکمت کا در کھلتے ہی پہلا مریض نوری ہو وہ خود خاکی جیسے ہو
بنا کے بیٹھے ہیں، بیدار ہو کے بولیے میرے ساتھ آخری بندے تک۔ حیدری مالک آپ کو سلام دے، آباد و شاد رہے۔ اتنا بڑا طبیب ہے زمانے کا حسین، کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ اس دنیا میں آیا تو اللہ کے ایک مجرم کو شفا بخشی۔ توجہ، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی ایک مجرم کو شفا بخشی۔ پہلے دن جو آیا وہ زمین کا مجرم نہیں تھا، وہ عرش کا مجرم تھا، نوری فرشتہ تھا، عرش کا رہنے والا تھا۔ حسین نے شفا بخشی، اس دنیا سے جانے لگا تو جو مجرم تھا وہ فرشی تھا، زمین کا تھا، اور کو شفا بخشی۔ حسین بادشاہ نے اس دنیا میں آ کے اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے دو بڑے مجرم کو نجات دے کے زمانے والوں کو بتایا۔ اور زمانے والوں یاد رکھو، فرش پہ بھی حکومت حسین کی ہے، عرش پہ بھی سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ ملی شفا، کس سے ملی؟ کیا حسین بادشاہ سے بس ہوا تھا؟ نہیں، بانی شریعت موجود تھا وہاں پہ، جس نے سارے حلال بتائے، سارے حرام بتائے، ساری سنتیں بتائیں، ساری بدعتیں بتائیں، سارے واجب بتائے، سارے سنت بتائے۔ وہ نبی موجود تھا جب یہ فطرس فرشتہ آیا، وہ نبی موجود تھا۔ اور عزیزان گرامی قدر، نبی کے ہاتھوں پہ تھے حسین۔ جب جبریل نے آ کے کہا کہ میرا مالک یہ فطرس فرشتہ ہے، یہ آج کے صدقے میں شفا مانگنے کے لیے آیا ہے، سامنے پڑا تھا جھولا۔ نبی نے حسین سے مس نہیں کیا، حرف حرف کی ذمہ داری کے ساتھ حسین سے فطرس مس نہیں ہوا، جھولا پڑا تھا، ابھی لیٹے نہیں تھے۔ نسبت تھی کہ اس جھولے میں حسین لیٹیں گے، نبی نے فرمایا لے جا، جہاں سے پر کٹے ہیں یہی جگہ حسین کی نسبت سے مس کر۔ جس بندے کو ہاتھ حسین کی تائید کے لیے اللہ نے دیے ہیں اور زبان دی ہے آل محمد کے ذکر کی خاطر، وہ بندہ بولے گا رسول پاک نے حسین کی نسبت سے، نسبت تھی نا، جھولا نسبت تھا، جھولے سے مس ہوئے تھے حسین، جھولے کی نسبت تھی حسین کے ساتھ۔ حسین بادشاہ نے اب بھی لیٹے نہیں، آرام نہیں فرمایا، رسول کریم نے حسین کے جھولے سے، حسین کی نسبت سے فطرس کو شفا دلوا کے اپنی امت کو بتا دیا، اے میری امت یاد رکھنا، حسین کی نسبت سے جھولا ہو، علم ہو، تعزیہ ہو، ذوالجناح ہو یا حسبی نسبی سید ہو، اس سے شفا مانگنا بدعت نہیں، نبی کی سنت ہے۔ بندگی این ہے، جنت ملے گی اس کو جو حب حسین ہے۔ اے زہرا تیری نماز کو میرا سلام ہے، بغیر حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ زندگی ہو آپ کی، آپ نے ربائی پڑھی کہ بغیر حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ چلے میں مکمل کر دیتا ہوں، بے حب اہل بیت عبادت کا ذکر کیا، ان کے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے۔ بولے جو حلالی بیٹھے ہیں، جو حسینی میں آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد۔ اسی طرح بیدار ہو کے، کیونکہ آپ کے مذہب کی تائید میں بات کر رہا ہوں، پر ملے، شفا ملی، پھر اڑا، پھر فرشتوں کی صف سے آگے، پھر دعویٰ ممثلی، کون ہے میرے جیسا؟ جبرائیل امین دیکھ کے کہنے لگے پھر ہوئی گل، کہنے لگا پہلے فقط دعویٰ تھا، اب دلیل ہے، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، مجھے حسین نے آزاد کر دیا۔
मैं हुसैन का, जब ये कहा ना मैं हुसैन का आज़ाद करता हूँ, फिर पीछे मुड़ के कहने लगा जिब्रील अमीन मुझे ये बता, बड़े फ़ख्र की बात है, मुझे हुसैन ने अपना नौकर बना लिया, लेकिन मैं हूँ हुसैन का छोटा नौकर। ये भी बड़े फ़ख्र की बात है कि छोटा हूँ, ये भी बड़े फ़ख्र की बात है कि हुसैन ने अपनी नौकरी में रख लिया। जुमला उन लोगों के लिए है जो आज के दिन गाजी अब्बास को खराज अकीदत पेश करने के लिए आया है। अजीज़ान गिरामी कदर कहने लगा कुछ कर, मुझे हुसैन का बड़ा नौकर बनना है। जिब्रील कहता खामोश हो जा, तू कैसे बन सकता है, हुसैन का बड़ा नौकर तो अब्बास है। इमाम ज़माना राजी हो आपसे, गाजी अब्बास राजी हो आपसे, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। कैसे बन सकता है? कौन गाजी अब्बास? तारीफ करो, जिसके अलम घरों पे लगाते हो वही गाजी अब्बास। कहते हैं जी क्या फायदा है अब्बास के अलम का, ज़रूरत ही क्या है, एक डंडा लेते हो, ऊपर कपड़ा चढ़ाते हो और फिर उसी से औलाद मांगना शुरू कर देते हो, उसी कपड़े से शिफा मांगना शुरू कर देते हो। भला कपड़े से भी कभी किसी को शिफा मिली है? भला कपड़े से भी कभी किसी को शिफा मिली है? भला कपड़ा भी किसी को कोई औलाद दे सकता है? भला कपड़ा भी किसी की हाजत रवाई कर सकता है? ऐसे बदबख्त बंदे के ऊपर दिन रात सूरह यूसुफ लानत करती है, सूरह यूसुफ लानत करके कहती है अगर कपड़े से शिफा ना मिलती होती तो कभी भी यूसुफ की कमीज से याकूब की आंखों को भिलाई ना मिलती। तवज्जो है आप हजरात की या नहीं? तवज्जो है आप हजरात की या नहीं? नहीं, पता नहीं क्या रखा है इस अलम में। आओ मैं तुम्हें बताऊं गाजी अब्बास के अलम का फ़ायदा क्या है। ये थोड़ा फ़ायदा है कि आप किसी पिंड में अजनबी गांव में चले जाएं। मजहब शिया की 3 पहचानें हैं। पहला अली वलीउल्लाह, दूसरा मातम हुसैन, तीसरी फ़िक़्ह जाफ़रिया। आप किसी गली में गए, अजनबी गांव था, किसी की पहचान नहीं थी, पहले दरवाजे पे गए, 20-25 घर उस गली में, तो हर गली में होते ही है ना। आपने एक दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बंदा बाहर निकला, आप उससे सवाल करेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं या नहीं? वो हाँ या ना में जवाब देगा, यहाँ या ना, आपको जवाब मिल गया। दूसरे दरवाजे पे गए, आप मातम हुसैन करते हैं या नहीं? वो कहेगा या करता हूँ या नहीं करता, आपको जवाब मिल गया। आप तीसरे दरवाजे पे गए, आप पूछेंगे कि भाई नमाज पढ़ते हो, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक पढ़ते हो या फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक? वो कहेगा या हाथ खोल के पढ़ता हूँ या हाथ बांध के पढ़ता हूँ। यानी 3 दरवाज़ों पे जाके 3 सवाल करने पड़े तो आपको जवाब मिला। अगर उसी गली में किसी एक घर पर भी गाजी का अलम लगा हुआ हो तो फिर सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलम देख के पता चल जाएगा अली वलीउल्लाह भी है, नमाज भी है, मातम हुसैन। बोले जो गाजी के मुरीद नहीं यहाँ से सारे मिलके बोलिएगा। ये थोड़ा फायदा है नहीं, तुम्हें मिलता क्या है? मिलता क्या है? अलम उठाने से मिलता क्या है? जा तारीख पाकिस्तान उठा के देख ले, 1947 से लेके 2023 तक बड़ी तंजीमें बनी, बड़े इसके नाम के ऊपर फैसले किए गए, बड़ी तंजीमों ने बड़े नौजवानों को गुमराह किया, तेरी कौम के बच्चों को गुमराह किया और एटम बम बांध के उन्होंने मस्जिदों में धमाके किए, दरबारों पे धमाके किए, मजलिसों में धमाके किए, बाजारों में धमाके किए। गाजी अब्बास के अलम का इससे बढ़ के फायदा और क्या होगा कि इन धमाका करने वाले बच्चों में से कोई एक भी गाजी का अलम उठाने वाला दिखा दे, मैं मजाक छोड़ दूं। जिंदा जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोई एक भी
धमाका करने वाला कोई एक भी अली का शिया दिखा जिसने किसी की जान को नुकसान पहुंचाया हो। और बाकी रह गई उठाने की बात। नसीब अपना अपना, मुकद्दर अपना अपना, नसीब का गिला नहीं, तकदीर खुदा ने लिख दी। अगर उठाने की बात है तारीख पढ़ के देख ले, बड़े बड़े ये रोते चले गए। मैं दिखाने को तैयार हूँ किताबों से, बड़े बड़े इस बात पे रोते चले गए कि हमें कुर्सी मिली, तख्त मिला, ताज मिला, लश्कर मिला, ताकत मिली, सियासत मिली, खिलाफत मिली, लेकिन ये दर्द हमारे सीने से नहीं जाएगा। काश अलम हमें मिला होता, काश अलम हमें मिला होता। मुझे इज्जत हैदर करार की कसम, मस्जिद नबी थी, सरकार मिंबर पे बैठे थे और बयान फरमा रहे थे, मेरे साहबियों क़यामत का बड़ा होलनाक मंजर होगा, हशर की गर्मी होगी, कहीं साया ना होगा। एक बड़े सारे कद वाला बंदा उठा, कहने लगा या रसूलल्लाह, इस साए में बगैर साए के आपकी उम्मत कहाँ जाएगी? सरकार ने फरमाया एक साया होगा जो मेरे परचम लिवाल हमद का होगा, जिसके नीचे मेरी सारी उम्मत आराम करेगी। कहने लगा या रसूलल्लाह, इतना बड़ा अलम उठाएगा कौन? सरकार ने फरमाया वही अली जिसे मैंने खैबर में आता किया। इधर वाले जमाल जमाल कली कली, जमाल जमाल कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। अली अली अली, दोनों हाथ बुलंद करके उसी अली को दूंगा, उसी मर्द को दूंगा जिसे खैबर में अता किया था। याद रख, बड़ा प्रोपेगेंडा कर रखा है, अलम के करीब ना जाना, निकाह टूट जाता है, अलम को ना उठाना। अगर इतनी ही गैरत है तो फिर वहां क़यामत वाले दिन नबी मुस्तफा का जब लिवाल हमद लहराया जाए तो फिर उसके नीचे भी ना जाना, वरना तेरा निकाह टूट जाएगा। ये परचम कोई आज का परचम थोड़ी है। इसलिए तो इस्म रजा कहता रहता है, हुसैनियत की है हदे आखिर कब तक, यजीदियत के यही वस्फ से नहीं जाते। तवज्जो चाहूँगा, हुसैनियत की है कहाँ तक हदे आखिर, इसी यजीदियत के यही वस्फ से नहीं जाते, यजीदियत के यही वस्फ से नहीं जाते। वो बादशाह जो तन्हा था करबला में कहीं, अब कितने अलम है उसके गिने नहीं जाते। घर घर अलम है, बाजारों में मालिक आपको सलामत है। क्या बादशाह है? कौन? गाजी अब्बास, जिसका आलम मर्द उठाते हैं। ये शान है मर्दों की कि गाजी अब्बास का आलम उठाते हैं। वो जिसके लिए कपड़े जन्नत से दर्जी लेकर आए उसे फर्जंदे बतूल कहते हैं, और जिसके कपड़े खुद बतूल सी के जाए उसे हजरत अब्बास कहते हैं। जिसका झूला मुक़र्रब फरिश्ता रूहुल अमीन जिब्रील झुलाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे हजरत अब्बास कहते हैं। आओ जुमला आपकी नजर करूं, कौन गाजी अब्बास? वो गाजी अब्बास किस अजमत का मालिक है कि जो हुसैन की जंबश अबरू को वही का दर्जा देता हो। गर्मी इतनी भी नहीं जितना माहौल बना के बैठे हो। जो हुसैन की जंबश अबरू को वही का दर्जा देता हो उसे अब्बास कहते हैं। लो जुमला आखिरी बंदे तक नजर करने जा रहा हूँ। गाजी अब्बास का तारफ है, ये गाजी अब्बास का नहीं बल्कि मेरे अकीदे का तारफ है। कौन गाजी अब्बास? जिसकी मयान में सोई हुई तलवार चमकती हुई नहीं, काटती हुई नहीं, टकराती हुई नहीं, लड़ती हुई नहीं, जिसकी मयान में सोई हुई तलवार
कितने थे मुकाबले में? 9 लाख। हर बंदे की आंख पे आंखें कितनी होती हैं? हर बंदे के चेहरे पे आंखें कितनी? बोल के जवाब दीजिएगा। 2 आंखें होती हैं। 9 लाख की कितनी आंखें? 18 लाख। जिसकी मयान में सोई हुई तलवार 18 लाख आंखों से सोने की ताकत छीनने से हजरत अब्बास। तो जो है आप हजरात की जाने दरूद पढ़ लीजिए बुलंद आवाज। मैं तो अपना अकीदा ही बयान कर सकता हूँ। गाजी अब्बास का तारफ़ करवाए, जो हसन हो जो हुसैन हो। तो जो है आप हजरात की जाने अजीज़ान गिरामी कदर किस अज़मत। किताब का नाम अल खसाइस अल अब्बासिया। उसमें एक जुमला नकल है कि जनाब किरदगार वफा की पाक वालदाने चाशबान बज़ाहिर तो हज़रत अब्बास दुनिया को दिया, लेकिन बातनी तौर पे हकीकत में 3 काम किए। पूछा गया कौन कौन से? अल्लामा कलबासी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आतत नासा बाबल हाजाते व आतत अबा अब्दुल्लाह हुसैन काशिफुल करबाते व आतत अली फिल हयाते, कि लोगों को हाजतें पूरी करने वाला दरवाज़ा दिया। जिसका ये अकीदा है कि अब्बास बाबल हवाजा, वो बंदा बोलेगा लोगों को हाजतें पूरी करने का दरवाज़ा दिया। दूसरा आतत अबा अब्दुल्लाह हुसैन काशिफुल करबाते, हुसैन के दुख दूर करने वाला हुसैन का भाई दिया। आतत अली फिल हयाते, और जिस अली को बना के अल्लाह ने कहा दूसरा नहीं बनता, उसी अली को जिंदगी में दूसरा अली दिया। चले मैं दलील दे देता हूँ कि जनाब सलमान मोहम्मदी से रिवायत है, एक मर्तबा सरकार गुजरे, देखा यूं मेरा अमीर कायनात मुश्किल कुशा नासर अंबिया वलीउल्लाह बजहुल्लाह मेरा मौला अली अपने चेहरे के सामने आईना रखा हुआ, देख रहे हैं। आईने में एक होता है शीशा, शीशे के आर पार देखा जाता है। आईना वो जिसमें बंदे को अपना अक्स नजर आता है, सामने रखा हुआ, देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। जनाब सलमान करीब आए, या अली बड़ा नाज है अपने हुस्न पे। सरकार ने फरमाया मैं नाज की वजह से नहीं देख रहा, मैं तो इबादत कर रहा हूँ। कहने लगा मौला कैसी इबादत? सरकार ने फरमाया हदीस नहीं सुनी, नबियों के सरदार ने फरमाया था अन नजरो इला वजहे अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत। जो है आप हजरात की अली के चेहरे को देखना इबादत। सलमान था, आगे कोई आम बंदा नहीं था, कदमों पे हाथ लगा के कहता मौला ये बताइए आपके चेहरे को देखना आपकी इबादत है या अल्लाह की? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अगर तो चेहरा वजहुल्लाह है तो फिर अल्लाह की इबादत, अगर मेला होगा तो मेरे। कह दूं जुमला जिसके लिए अब तक मेहनत की है। देखते रहे अली चेहरा, करते रहे इबादत, देखते रहे चेहरा, करते रहे इबादत। जब आई 4 शबान और मौला अली के हाथों पे हजरत अब्बास आए, पहली नजर जनाब सलेमान मोहम्मदी की हजरत अब्बास के चेहरे कमरे बनी हाशिम पे पड़ी। कदमों पे अली के हाथ लगा के कहते हैं या अली अब आईना ना देखना, तेरा अक्स बन के अब्बास आ गया है। लोगों को अजमत का अंदाजा ही नहीं। आज बहस कर रहे हैं कि जी सिर्फ 14 मासूम होते हैं और इनके अलावा कोई मासूम नहीं है, सिर्फ 14 ही। भाई इस्मत के दर्जे हैं, कोई इस्मत कुबरा पे फायज, कोई इस्मत सुगरा पे फायज। ये तो फिर 72 शोहदा हैं। अब्बास तो फिर अली का खून है। मैंने कामुल ज़ियारात में जुमले पढ़े हैं, इमाम का फरमान मौजूद है कि जो बंदा मौला करीम करबला की ज़ियारत को जाता है, जब पहली ज़ियारत करता है मौला की जरी पे पहली नज़र पड़ती है, आवाज़ कुदरत आती है, ऐ बंदा खुदा
پھر سے عمل کرنا شروع کر دے. آج تک تو ایسے معصوم ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. جن کی زری معصوم گر ہو ان کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ یاد رکھیے عباس حجت نہیں، امام نہیں، لیکن امام نے اٹھ کے استقبال کیا ہے غازی عباس کا. اتنا بڑا مرتبہ ہے میرے مولا غازی عباس کا. عصمت کبریٰ ایک عصمت صغریٰ. عصمت کبریٰ پہ کون فات؟ جو ہماری 14 حجتیں ہیں، یہ ہیں بڑے معصوم. پھر ان کی جو غیر حجت اولادیں ہیں یہ عصمت صغریٰ کے درجے پہ فائز ہیں. اچھا چلو، جو بندے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرف چلا گیا، میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. ہم معصوم کی جب تعریف کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ جس سے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہو. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تائید میں بولا کرو یار، ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں معصوم وہ ہوتا ہے جس کے وجود سے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہو، اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہو. لو جو بندہ اب تک چپ بیٹھا ہوا ہے غازی عباس کے ذکر میں، غازی عباس بھی اس سے راضی ہو، اور وہ بندہ غازی عباس کی تائید میں ضرور بولے گا. عزیزان گرامی قدر، ہمارے جتنے بھی معصوم اس دنیا میں آئے اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت لے کر آئے ہیں. ہمارے کسی پہلے معصوم سے اگر کسی نے پوچھا اللہ رحمان و رحیم ہے تو کیسے، پہلے نے رحمت للعالمین بن کے بتایا کیسے. اگر علی بادشاہ سے پوچھا اللہ مردے زندہ کرتا ہے تو کیسے، مولا علی نے ٹھوکروں سے زندہ کر کے بتایا کیسے. اگر مولا حسن سے کسی نے پوچھا اللہ خیر الرازقین ہے تو کیسے، سرکار حسن نے دسترخوان بچھا کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ صمد بے نیاز ہے تو کیسے، سرکار حسین نے بے نیازی کے سجدے کر کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ صبر و شکور ہے تو کیسے، سرکار سید و ساجدین نے صبر اور شکر کی نمازیں پڑھ کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ راسخون فی العلم ہے تو کیسے، سرکار باقر نے علوم آل محمد بہا کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ لسانہ صدق نالیہ ہے تو کیسے، سرکار جعفر نے صادق آل محمد بن کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ کاظمین الغیظ ہے تو کیسے، سرکار موسیٰ نے کاظم بن کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ مصور ہے تو کیسے، سرکار رضا نے اشارے سے شعر کو بنا کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ جواد ہے تو کیسے، سرکار تقی نے جواد بن کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ ہادی ہے تو کیسے، سرکار نقی نے ہادی بن کے بتایا کیسے. اگر کسی نے پوچھا اللہ لشکر رکھتا ہے تو کیسے، سرکار عسکری نے لشکر دکھا کے بتایا کیسے. اگر کوئی پوچھے کہ اللہ غیب میں رہ کے حاضر ناظر ہے تو کیسے، سرکار 12ویں نے پردہ غیب میں جا کے بتایا کیسے. اللہ کی ہر صفت کا اظہار ان سے ہوا، ایک صفت تھی جس کا اظہار باقی تھا. اگر کوئی پوچھے اللہ بغیر ہاتھوں کے عطا کرتا ہے تو کیسے، عباس نے بغیر ہاتھوں کے باب الحوائج پڑھ کے بتایا کیسے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات. جملے ملتے ہیں کتابوں میں کہ عرب کے سرداروں میں، بنو ہاشم کے نوجوانوں میں سب سے بڑا قد تھا حضرت عباس کا. اتنا بڑا قد کہ 2 رکابوں والا گھوڑا استعمال کرتے. جب گھوڑے پہ سوار ہوتے عباس کے زانوں مبارک گھوڑے کی گردن کے ساتھ مس ہوتے تھے. دکھ کی بات یہ ہے جن علماء نے لکھا کہ سب سے بڑا قد تھا عباس کا، انہی علماء نے لکھا سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. اللہ تیری ہائے قبول کرے.
पाक बतूल तुझसे राजी हो। मक्तले दरबंदी में अलामत दरबंदी लिख गए हैं, कब्रुल अब्बास कल किताब, वो लिख गए हैं अब्बास की कब्र किताब की मानद है। जो ज़ियारत कर रहे हैं तस्दीक करेंगे, ऊपर जो है वो ज़री है, जो सरदाब मुक़द्दस में कब्र बनी हुई है ना गाजी अब्बास की, उलमा लिखते हैं जितनी छोटे बच्चे की कब्र होती है। हक बनता है आपका सवाल करो मिस रज़ा, जब कद सबसे बड़ा था कब्र सबसे छोटी क्यों, कब्र सबसे छोटी क्यों। आज़ादारो रोने वालों लिखते हैं सैयद महदी बहरुल उलूम कि कोई भी शहीद हो ना, कोई भी शहीद, उसकी शहादत पड़ी जाए तो पाक बतूल जो जन्नतुल बकी से चल के आती है वो एक हाथ से मातम करती है, लेकिन वाहिद गाजी अब्बास है जब इसकी शहादत पड़ी जाती है बीबी को पहलू का दर्द भूल जाता है, दोनों हाथों से मातम करके कहती है मैंने बेटियों के पर्दों के लिए मांगा। शर्माना नहीं है, थोड़ा माहौल बना। अज़ादारी का आँख का वजू हो जाए तो ज़माने के इमाम की आबादी की दुआ मांगना, इस पाक ख़ानदान की हुकूमत की दुआ मांगना। अज़ादारो रोने वालों, किताबों में जुमले मिलते हैं 4 बीबियाँ इस पाक ख़ानदान की ऐसी हैं जिनके बाल वक़्त से पहले सफ़ेद हो गए। पूछा गया कौन कौन सी, कहने लगे पहली बीबी रसूल की बेटी, 18 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। दूसरी कहने लगे दूसरी है अली अकबर के हिस्से की बहन, जब अली अकबर की सवारी नज़रों से ओझल हुई 7 साल की उम्र में बीबी के सर के बाल सफ़ेद हो गए। तीसरी बीबी जिनकी छोटी औलाद है उनके लिए पढ़ रहा हो, तीसरी बीबी कहते तीसरी बीबिया हुसैन की 4 साल की मासूमा, 4 साल की उम्र में जिसके सर के बाल सफेद हो गए। अब रो ना रो तेरी मर्जी, मातम कर ना कर तेरी मर्जी। जुमले मिलते हैं चौथी बीबी वो बीबी है जब पता चला गाजी ने जीन छोड़ दी, मुसल्ले पे बैठी आलिया के सर के बाल सफेद। अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। अज़ादारो रोने वालों, तेरे मजहब का बहुत बड़ा आलम है सैयद महदी बहरुल उलूम, वो लिखते हैं कि एक दफ़ा सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन के हरम में दर्स दिया, मजालिस पढ़ी। एक दफ़ा आलम ख़ाम में सरकार गाजी की ज़ियारत हुई, गाजी अब्बास आके कहने लगे मेरे आका हुसैन का बहुत बड़ा खतीब है, हमारी आल औलाद में से है, तुझसे एक काम पड़ गया। कदमों पे हाथ लगा के कहता मौला हुक्म कीजिए, चाँद भी हाजिर है। गाजी ने सर झुका के कहा मेरी कब्र के करीब आ गया पानी, और जब से असगर और मासूमा को पानी नहीं मिला, गाजी को पानी अच्छा नहीं लगता, गाजी को पानी अच्छा नहीं लगता। जो मातमी बैठे हो खुसूसन सीने प्यारे न करना, जो अब्बास के मुरीद हो, सैयद महदी बहरुल उलूम ख्वाब से बेदार हुए, 4 सैयद मजदूरों को साथ लिया, वहाँ आए जहाँ सरदाब मुक़द्दस का दरवाज़ा था, दरबान को कह के दरवाज़ा खुलवाया, मजदूरों को कहा जाओ जाके अंदर देखो पानी की सूरत हाल, कहाँ से पानी आ रहा है। मजदूर अंदर उतरे, थोड़ी देर बाद रंगीन पेशानियों के साथ पत्थर मारते हुए बाहर आए, आके कहने लगे महदी आज तक हमसे झूठ बोलता रहा, तू तो कहता था गाजी का कद सबसे बड़ा है, हम देख के आए हैं गाजी की कब्र किताब की जितनी छोटी है। सैयद महदी ने अमामा उतारा, मातम करके कहता है देखा तुमने भी सच है, पढ़ा मैंने भी सच है, क्या करूं जितना सैयद सज्जाद को मिला। अकेले कासम तकसीम नहीं हुए, सिफीन के बदले इन्होंने अब्बास से लिए हैं, सिफीन के बदले अली के बदले इन्होंने अब्बास से लिए हैं। अज़ादारो रोने वालों, पाक मासूमा ने मश्क पहनवाई, गाजी अब्बास ने ज़ीरा पहना, खुद पहना, तीर कमान साथ लिया, गुर्ज साथ लिया, तलवार उठाई, नेज़ा लटकाया, खड़ा हुआ हुसैन के खैमा के दरवाजे पे। अब्बास की तैयारी देख के करबला का गरीब कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ। गाजी किधर जा रहा है? मौला
जंग करने नहीं जा रहा। मासूमा ने मश्क पहनाई है, मौला मैं पानी लेने जा रहा हूँ। गाजी सच में पानी लेने जा रहे हैं? हाँ मौला पानी लेने जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया अगर पानी लेने जा रहे हैं तो फिर मैं इमाम होकर हुक्म देता हूँ ये खुद उतार दे। वफा का किरदगार खुद उतार के हुसैन के कदमों में रखा। गाजी ज़िरा उतार के रखी। गाजी तीर कमान रख। गाजी ने तीर कमान बतूल के बेटे के कदमों में रखा। जब सब कुछ रख दिया ना गाजी ने, जितना बड़ा साबिर था हुसैन, अब आका दामन अपने चोगे पे लेके रुख मोड़ के कहता है गाजी मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ तलवार भी रख दे। तलवार का नाम आया, हर किसी ने बर्दाश्त किया। जिसने पाला था अब्बास को वो आई हुसैन के कंधे पे हाथ लगा के कहती है बेगानी माँ का बेटा समझा, इसलिए बगैर तलवार के भेज रहा है। हुसैन पलटे, कहने लगे बहन तेरी बात मानता हूँ, गाजी मेरी तलवार उठा, अपनी तलवार उठा, जाके हमला कर, लेकिन याद रख जितना तू शामियों को मारेगा उतने ये शामी मेरी मासूमा को मारेंगे, उतने ये शामी मेरी आलिया। मातम कर, अल्लाह ने हाथ मातम के लिए दिए हैं। उतने ये शामी मेरी मासूमा को, उतने ये शामी मेरी आलिया को मारेंगे। आजादारो चला गाजी, चला गाजी। गाजी गया, एक नेज़े के साथ जंग की, दरिया का किनारा खाली करवाया, मश्क भरी, खुद ना पिया, मश्क लेके जब जाने लगे सारी फौज ने मिल के हमला कर दिया। एक नेज़े के साथ लड़ भी रहे हैं, मश्क की हिफाजत भी कर रहे हैं। अल्लाह लानत करे इस मलून पे, इसने छुप के वार किया। गाजी का बायां बाजू कलम, रो के कहने लगे ऐ मासूमा तेरा सदका। थोड़ी देर बाद एक बाजू से लड़ रहे थे, या जालिम ने दूसरा वार किया, दूसरा बाजू कलम हुआ। रो के कहा अली असगर तेरी वेल दे के जा रहा हूँ। जब दोनों बाजू अब्बास के कलम हो गए, अब्बास ने मश्क के तस्मे को मुंह में रखा और घोड़े पे झुक के कहते एक दफा मुझे वादा पूरा करने दे, एक दफा मुझे खयाम पहुंचा दे। अल्लाह लानत करे हुरमला मलून पे, इसने मशकीज़े का निशाना लिया, तीर मशकीज़े में लगा, पानी छिद गया। गाजी की आवाज आई अब खैमा में न जाना, अब मुझे लश्कर की तरफ ले चल। सब ने मिल के हमला किया, सीने प्याले न करना, सब ने मिल के हमला किया। हकीम बिन तुफैल ने ऐसा गुर्ज मारा, सारा ऐसे खुल गया जैसे कुरान खुलता है। दौड़ते हुए घोड़े से गाजी गिरे, पांव रकाबों में फंस गए। आवाज आई भैया मेरा आखिरी, भैया मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन ने खड़े होके कहा गाजी मेरी कमर टूट गई, गाजी मेरी कमर टूट गई। आजादारे तो गैरतमंद शिया बैठे हो, जो नौजवान बैठे हो हल्के के, ये मेरे बंदे हाथ हैं। अली अकबर के लाश पे भी गया है हुसैन, कासिम के टुकड़े भी उठाए हैं हुसैन ने, और जैसे मेहमान को उठाया है हुसैन ने, ओनो मोहम्मद को भी उठाया है हुसैन ने, अली असगर के गले से तीर भी निकाला है हुसैन ने। लेकिन जैसे अब्बास की लाश पे गया है ऐसे किसी की लाश पे नहीं गया। आजादारो हालत क्या है, अमामा खोल के गले में आया हुआ है, अमामा खोल के गले में आया हुआ है, अलमो वाले की लाश पे जा रहा है। अभी 70 कदम दूर था, अल्लाह जाने क्या हालत देखी। हुसैन ने गिरबान चाक किया, करबला की रेत उठा के अपने सर में डाली, रो रो के कहते गाजी तू तो करबला की रेत में सो गया, आज के बाद ना मेरी मासूमा सो सकेगी, ना मेरी बहनें सो सकेगी। आजादारों जब करीब पहुंचे तो शिमर मलून 300 घोड़े ले आ मेरे वाला कलम,